आवाज अच्छी है, क्लियर है? हाँ। चलो, टेक a deep breathe in, exhale the breathe out. Take a deep breathe in through your nostril and exhale through your mouth. Inhale through your nostril, exhale through your mouth. और take a deep breathe in. तीन ओंकार के साथ प्रार्थना। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, join your palm for prayer. ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाद्वै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। Rub your palm. Cup your eyes and slowly open your eyes. Now, आज हम सूक्ष्म व्यायाम की जगह एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। फर्स्ट, गेट इन का पोज के लिए तैयार होंगे तो वज्रासन में बैठेंगे। अपने दोनों हाथों का एल्बो को टच करते हुए नींद से एक फासला बनाए और दे एक पाम आगे, इस तरह से दोनों हाथों में और दोनों पाँव में शोल्डर विद अपार्ट, दोनों फुट में भी शोल्डर विद अपार्ट। इनहेल हेड अप, exhale head down, spine up, chin to the chest. Inhale head up, exhale chin to the chest. Inhale head up, बैक में कर्व आएगा। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Exhale chin to the chest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Come back to center. Now इसी के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। Stretch your leg as much as you can. Straight back and look up. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now same elbow, knee and elbow together. Chin to the chest, spine up. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसको मूवमेंट के साथ करेंगे। इनहेल अप, exhale, knee and elbow together. Inhale up, exhale, knee and elbow together. Exhale, sorry, inhale, straight your leg back. Exhale, knee and elbow together, chin to the chest. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now, um, straight your leg and then exhale करते हुए opposite elbow and knee together. 10 count with this round. First, straight your leg back. Look up, exhale, knee and left side elbow together. Chin to the chest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and release.
Same will do with another leg. Inhale, look up, exhale, chin to the chest. Inhale, left knee up, and same elbow, bendy. Elbow and knee together. Inhale up, straight your leg back. Elbow and knee together, chin to the chest. Inhale, third round. Exhale, chin to the chest. Inhale, fourth round. Knee and elbow together. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, opposite elbow and knee together के साथ करेंगे 10 count. Inhale, legs up, left leg up. Exhale, knee and right elbow together, chin to the chest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and release. Now, come on, you are sitting in a Vajrasana and drop your hands in front of your body, head to your mat. Hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 for relaxation. Now, sitting in a Bhadrasana. While you have joined, okay. Now, वार्म अप कर लो फटाफट और आ जाओ इस पोज में. बटरफ्लाई पोज. आज खुशबू ज्वाइन नहीं होगी इसलिए हम 3 जने हैं. Now place your palm on your knees, toes together and hold for 20 seconds. ट्राई करो नीचे ले जाने का. फुट को ज्वाइंटेड रखो और नी को प्रेस करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhale, raise your palm up. 4 अंगुल का फासला बना ले अपने हील और ग्रोइन में. And then drop your hands in front of your body. Try to push your head more and more grounded. Hold. 1, 2, 20 count तक होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Try to push your head more and more grounded or over your toes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Raise your hands up and release. Joint your knees, hug your knees, head to knee. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, and 10. Come back to center. Now, गोमुख आसन के लिए प्रैक्टिस करेंगे. सॉरी, हम वो मंडूक आसन का कर लेते हैं. मंडूक आसन में दोनों हाथों को पीछे नमस्कार मुद्रा बनाते हुए अपने बैक पे लगा दो. नमस्कार मुद्रा ऑन योर बैक. एंड इनहेल, हेड अप. बैक पे कर्व देते हुए हेड को अप करेंगे. सांस लेते हुए हेड अप and exhale, go down. Look front. First round, look front. Hold for 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now interlock your hands on your back. ऐसे इंटरलॉक करके स्ट्रेच करना है अपने हाथों को पीछे की तरफ. And look up. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, drop your head down on your mat and lift your arms up. जितना आप अपने हाथों को उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करो. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Release. Now open your hands in rotation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Come back to center. Stretch your arms as much as you can. Stretch it, stretch it. 1. Imagine both sides is a wall and you are pushing the wall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Open your fingers and close it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotate your wrist. 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. With a stretching hand, roll your shoulder back. 1, 2, 3. Reverse. 1, 2, 3. Now come back to center. Interlock your hands. Sitting in a cross-leg position. नाउ अभी हम गोमुख आसन की प्रैक्टिस कर लेंगे. गोमुख आसन में दोनों लेग्स को इस तरह से रखना है कि आपका नी एक के ऊपर एक रहे. ठीक है. नाउ दोनों हाथों को एंकल पे लगाते हुए एक बार उठाएं. दोनों नी को पास में करें एंड देन सिट ऑन योर हिप्स. अभी जो लेग ऊपर है, जो नी ऊपर है, उस हाथ को ऊपर से ले जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे की साइड अपने बैक पे क्लब करेंगे. हाथों को इंटरलॉक कर दो. उंगलियों को, फिंगर्स को क्लब कर दो. एल्बो फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग कंप्लीटली एंड फोकस ऑन इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Come back to center. Now open your legs. Right foot near the left knee. Right hand on your back and left hand stretch over your head. And then drop it. And reverse the force on your knee and look towards your right side. Focus on your right palm over your shoulder. If you feel comfortable, then catch your ankle from your palm. Twist completely. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Come back to center. Release your legs. Change your leg direction. Now right leg goes down and left leg on your right knee. Now left knee is above your right knee. Then एंकल से अपने हाथों को पकड़ते हुए, कैच करते हुए सिट ऑन योर हिप्स, ताकि और नी का डायरेक्शन पास में हो जाए. अभी लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा, राइट हैंड नीचे से जाएगा. लेकिन अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने पहले राइट हैंड को सपोर्ट, लेफ्ट हैंड को सपोर्ट देना है. ठीक है. लेफ्ट हैंड को
लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींच लेंगे हम, पीछे बैक में। मैं जैसे बताती हूँ, इस तरह से। अभी जैसे मेरा ये हाथ पूरा नहीं क्लब हो रहा है ना, दूर रह रहा है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट देना है अपने राइट पाम को और ऊपर की तरफ लेके आना है। इस तरह से आने के बाद आप पकड़ोगे तो पूरा कैच होने लगेगा। थोड़ा और सपोर्ट देते हुए इसको और ऊपर उठाए, एंड देन क्लब योर पाम एक दूसरे में, एल्बोस फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग। नाउ होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आप ये चुन्नी से या रुमाल से भी कर सकते हैं। अब इसी को पाँव को खोलते हुए वक्रासन की पोजीशन, अर्ध मत्स्यासन की पोजीशन बनाएंगे। तो लेफ्ट फुट को अपने राइट नी के पास में रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं कॉक्सिक के पास, राइट हैंड स्ट्रेच ओवर योर हेड एंड देन प्रेस योर एल्बो टुवर्ड्स योर नी, अपोजिट फोर्स देंगे एल्बो से नी को। देन ट्विस्ट कंप्लीटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड फोकस ऑन योर पाम ओवर योर शोल्डर। अगर आप कंफर्टेबल हैं, इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, कैच योर एंकल ऑल्सो एंड ट्विस्ट मोर। यह आपके पेन क्रियाज को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। कम बैक टू सेंटर, रिलीज। तो हमने ये दोनों आसन अच्छे से केटन का पोज के बाद ये गोमुख आसन एंड अर्धमसन आसन। अभी हम शवासन पे चलेंगे। बैक के ऊपर आ जाए अपने, दोनों हाथों को नीचे लगा दें। अल्टरनेट लेग रेजिंग, राइट लेग अप, लेफ्ट लेग अप, राइट लेग अप, लेफ्ट लेग अप। आपके एब्डोमिनल के फैट को क्लोज करने के लिए, कम करने के लिए ये आसन सबसे अच्छा है। 1 2 3 अल्टरनेट विल डू 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नी को स्ट्रेट रखते हुए 18 19 एंड 20। कम बैक टू सेंटर इन शवासना। एक लंबी गहरी श्वास लेके एब्डोमिनल को फुलाएं। पेट रिलैक्सेशन के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है। Inhale, raise your abdominal up. Exhale down towards your spine. Diaphragmic breathing. Inhale, raise your abdominal up. Exhale slowly down towards your spine. Now, अपने दोनों हाथों से लोअर आर्म पे आ जाएंगे। लोअर आर्म पे आने के बाद राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे, साइक्लिंग विद द सपोर्ट ऑफ लोअर आर्म। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कम बैक टू सेंटर। now दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे लगाते हुए हेड को नी से ज्वाइन करेंगे। फील द रिलैक्सेशन on your back. Now lift your foot up, हाफ बोट पोज में आ जाए एंड होल्ड। ये एब्डोमिनल के फैट को कम करने के लिए, मसल्स को टर्न अप करने के लिए, एब्डोमिनल मसल्स को काफी टर्न अप करता है। नाउ होल्ड दिस फॉर 20 seconds. If you feel comfortable, open your hands also, or you can get support from near the mat, ताकि आप इस तरह से इसको बैलेंस बना सकें, या फिर आप अच्छे से कर सकते हो। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20।
Take a deep breath in. Exhale the breathe out. फिर से इसी पोजीशन को बना के मूवमेंट के साथ करेंगे यही आसन 1 2 3 4 5 6 अल्टरनेट लेग को कर रहे हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 come back to center take a deep breathing श्वासों का बहुत महत्व है बीच बीच में सांस लेते रहेंगे तो आप और अच्छे से इसको कर पाएंगे नाउ अभी इसको हम दोनों लेग एक साथ स्ट्रेच करेंगे आप बोट पोज में ही थर्ड वेरिएशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सपोर्ट भी दे सकते हो 16 17 18 19 and 20 now take a deep breath in interlock your opposite elbow and head on your knee stretch your back and release आप बोट पोज के वेरिएशन के बाद हम फुल बोट पोज में जाएंगे फुल बोट पोज में knee toes pointing towards ceiling completely and leg straight from knee also stretch your whole legs towards ceiling when you feel comfortable open your hands also and full boat pose make this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 release take a deep breathing open your legs लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे दोनों हाथों को इस तरह लगाओ पीछे फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर हिप्स एंड लिफ्ट योर होल बॉडी अपवर्ड ऑन योर टोस ऑन योर फुट एंड पाम विपरीत दंडासन yes hang your head back and hold for 20 seconds try to push your toes on your mat hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 पूरा कंप्लीट इस तरह से विपरीत दंडासन बनाना ठीक है नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड कम ऑन योर पाम अपने पाम को अपने ईयर को पाम के ऊपर रखते हुए पूरा विष्णु पोज मुद्रा बनाएंगे जो आपकी साइड हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मोबिलिटी को बढ़ाएगा hips and your glute muscles both are involved in this asana now inhale पहले पाँव को अपने चेस्ट की तरफ लाओ and then open it 10 count इस तरह से 1 2 3 राइट लेग को उठाते हुए 4 5 6 7 8 9 and 10 now lift it up and down 1 स्ट्रेट योर लेग स्ट्रेट योर नी 2 नहीं होता है अगर तो सपोर्ट दे सकते हो आप इस तरह से एंकल को पकड़ के स्ट्रेट करना है हाथ का सपोर्ट देते हुए भी कर सकते हो और अगर ऐसे ही करो तो अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट के पास रखो एंड देन लिफ्ट इट अप 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इसके 3 राउंड भी कर सकते हो नाउ लास्ट राउंड कैच योर बिग टोज फ्रॉम योर पाम राइट पाम एंड स्ट्रेट द लेग ओवर योर हेड अपने हेड की तरफ खींचो जितना खींच सकते हो पेल्विक ओपनिंग हो रही है स्ट्रेच योर pelvic area and your muscles pelvic muscles feel the stretching on your pelvic area hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना 15 16 17 18 19 20 drop your foot
near the groin, outside of your groin. Catch your ankle with your right palm and lift your left leg up, ताकि आपके जो लेफ्ट लेग की ग्लूट मसल्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी. 3, 4, 5, उस पर बहुत अच्छा वर्क होगा. 7, 8, 9 and 10. Release. Now come on your chest. चेस्ट पे आ जाएंगे. अभी हमने लेफ्ट साइड से किया, अब चेस्ट पे हम लोअर लोअर प्लैंक करेंगे. तो लोअर आर्म को आप नीचे लगा दें, तो उसको एक्टिव कर दें, and then lift your body abdominal up and hold for 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलीज. एक प्लैंक किया हमने, अब एक भुजंग आसन करेंगे. दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लगा दें. इनहेल करते हुए एब्डोमिनल डाउन रखना. आपको नवल विजन आपके मैट पे रहेगा. एंड लुक अप. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कम बैक टू सेंटर. नाउ मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ. विष्णु पोज का ही अभी हम राइट साइड से करेंगे. ठीक है. तो राइट लीनियर पोजीशन पे आ जाए अपने बॉडी की. ये वाला सिटिंग पोजीशन में भी हम कर सकते हैं इस तरह से, आपके लोअर आर्म पे सपोर्ट देते हुए. लेकिन अभी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसा हमने लेफ्ट साइड किया. अपने राइट पाम पे अपने राइट ईयर को लगा दें. आर्मपिट में बिल्कुल भी गैप नहीं. आर्मपिट पूरी तरह से आपके मेट पे रहेगा. लेफ्ट पाम आपके चेस्ट के सामने. पूरे फुट एक के ऊपर एक, ऐसी पूरी राइट लीनियर पोजीशन बॉडी की बनाने के बाद इनहेल करके लेफ्ट लेग को अपने चेस्ट के पास लाएंगे एंड देन ओपन इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now come back up and down. 1, 2, 3. नी अगर स्ट्रेट नहीं रहता है तो फिर क्या करना है आपको, टोस को पकड़ना है. 1, देन नीचे. 3, फिर स्ट्रेच करो. 4. इस तरह से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने नी को स्ट्रेच करने के. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now catch your big toes, fold your leg and catch your big toes from your left palm. Stretch your leg over your head or stretch towards your head and hold. 1. बैलेंस पूरा बना के रखो. आपका लेफ्ट फुट कंप्लीट, राइट फुट कंप्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए, राइट लेग भी नीचे. एंड देन लेफ्ट लेग स्ट्रेच. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now place your foot outside of your groin and catch your ankle from your left palm and lift your right leg up and down. 3, 4 जितना उठा सकते हो. उसके ग्लूट मसल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now release. Come on your chest. Chest के सॉरी come on your back. बैक के बल आ जाए. शवासन की पोजीशन. हमने पहले चेस्ट के बल किया था, अभी हम बैक के बल करेंगे. तो बैक पे आने के बाद आपको बैक से ही पहले दोनों लेग्स को उठाना है और धीरे धीरे अपने हाथों को उठाना है. पूरी सिंपल बॉडी पोजीशन, मतलब सुप्त नौकासन वाली पोजीशन बनानी. on your back. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Take a deep breathing. अभी थोड़ा 35% और आगे हम बढ़ेंगे. इससे थोड़ा और लेग्स को ऊपर उठाते हुए हाथों को ऊपर उठाना है. तो बॉडी को पहले थोड़ा उठाएं एंड देन
अगर आप नहीं उठा सक रहे तो इस तरह से उठा के हाथों का सपोर्ट ले सकते, या फिर आप इस तरह से और ऊपर उठा सकते हैं। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसमें और ज्यादा आपके एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो भी थोड़ी थोड़ी कोशिश इसकी करते रहो, ताकि और ज्यादा आपकी कोर मसल्स मजबूत होगी। नाउ अभी पवन मुक्तासन की पूरी क्रिया करेंगे। पहले राइट लेग को फ्लैट फोर्सली अपने चेस्ट की तरफ दबाते हुए हेड को अप करना है, और नी से अपने हेड को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ चेंज योर लेग। लेफ्ट लेग को प्रेस करें अपने लेफ्ट नी को अपने चेस्ट की तरफ। इनहेल करते हुए हेड को अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए हेड टू नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पवन मुक्तासन सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। तो अब इसको मूवमेंट के साथ कैसे करेंगे? 1 2, हेड अप ही रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। कम बैक टू सेंटर। इसमें आपके नेक की मसल्स, आपके एब्डोमिनल मसल्स और लेग मसल। पवन मुक्तासन पूरी बॉडी पे वर्क करता है। नाउ फोल्ड योर लेग, knee facing towards ceiling, and gently touch your palm near the ankle or hip. Lift your whole body upward in Setubal Asana. शोल्डर नीचे रहेगा, आपकी ट्रंक पूरी ऊपर रहेगी। ब्रीज पोज बनाना है, जितना आप अपने एब्डोमिनल को उठा सको ऊपर, स्टोमक को ऊपर उठाओ एंड होल्ड करो। शोल्डर नीचे रहेंगे, हेड नीचे रहेगा एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Come back to center. Deep breathe in, exhale the breathe out. इसी में पांव फोल्ड रखते हुए ही फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग, नी फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जब हम करते हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग, तो इसको वशिष्ठ प्राणायाम भी कहते हैं। तो हम 3 ब्रीथ वशिष्ठ प्राणायाम की करेंगे। इनहेल, रेज योर एब्डोमिनल अप, एक्सहेल डाउन टुवर्ड्स योर स्पाइन। इनहेल अप, exhale down towards your spine. Inhale up, exhale down towards your spine. ये आपका क्विक रिलैक्सेशन कर देता है, जो भी बॉडी में थकान है उसको एकदम मिटाने वाला। नाउ अभी दोनों लेग को स्ट्रेच करते हुए लंबर लंबर स्ट्रेच करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने टोज को पकड़ते हुए राइट हैंड से ड्रॉप इट डाउन टुवर्ड्स योर राइट साइड। राइट साइड ड्रॉप कर दे एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट पाम ओवर योर शोल्डर लेवल। पूरा आपके दोनों लेग का 90 डिग्री का शेप बनाना है एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट पाम। डोंट लिफ्ट योर शोल्डर अप। शोल्डर को अप नहीं करना है, उसको ऑन योर मैट ही रखना है एंड देन होल्ड। 1 to feel the stretching of your leg muscles. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। नाउ इधर लाते हुए सेंटर में लाते हुए अपोजिट पाम से पकड़ेंगे एंड ड्रॉप इट डाउन टुवर्ड्स योर अपोजिट साइड। लुक टुवर्ड्स योर राइट पाम। अपोजिट साइड में हमने किया है अप लेग को, राइट लेग को, एंड देन होल्ड। 1, लुक टुवर्ड्स योर राइट पाम। डोंट लिफ्ट योर राइट शोल्डर अप, जमीन पे ही रखना है। 3 4 5 6, दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे, 90 डिग्री का कोण। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Come back to center. Drop it down in center. Now same will do with another leg. लेफ्ट टोज को लेफ्ट बिग
लेफ्ट पाम से पकड़ते हुए स्ट्रेच करें एंड देन ड्रॉप इट डाउन टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। अगर आपका छूट जाता है, पाम नहीं रहता है, तो आप इसको अपने थाइस को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे स्पीड अपनी मोबिलिटी बढ़ती है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। नाउ लुक टुवर्ड्स योर राइट पाम, फोल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ कम बैक टू सेंटर। अपोजिट हैंड से लेफ्ट टोज को पकड़ते हुए ड्रॉप इट डाउन टुवर्ड्स योर राइट साइड and towards your left palm. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर ये यहाँ पे नहीं पकड़ में आ रहा तो इस नी को अपने राइट हैंड से प्रेस कर सकते हो। इस तरह से भी कर सकते हो। नाउ कम बैक टू सेंटर एंड ड्रॉप इट डाउन। अभी एक जस्ट रिलैक्सेशन के लिए हम सरल मत्स्यासन देखते हैं। दोनों हाथों को अपने हिप्स पे लगा दे। सॉरी, पहले हाथों के सपोर्ट से अपने टॉप ऑफ द हेड को मैट पे लगाएं। पूरा टॉप ऑफ द हेड लगने के बाद अपने हाथों को थाइस के पास ले आएंगे। 20 सेकेंड इसी आसन में होल्ड करेंगे। ये सरल मत्स्यासन है जो आपके बैक को और आपकी नेक मसल्स को टर्न अप करने का काम करता है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। नाउ फिर से जैसे गए थे वैसे ही अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से बैक ऑफ द हेड को नीचे रखें। दोनों हाथों को फिर से थाई के पास लाते हुए लिफ्ट योर हेड अप एंड सी द फोकस ऑन योर टोज एंड देन ड्रॉप इट डाउन। इस तरह से कोई भी चढ़क नहीं आती है। नाउ जस्ट टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। बालासन की पोजीशन, राइट लेग को फोल्ड करते हुए जमीन पर लगाएंगे एंड देन लेफ्ट हैंड आपका स्ट्रेच रहेगा, राइट हैंड फोल्ड रहेगा एंड शिफ्ट योर बॉडी टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। इन बालासन जो बच्चे ज्यादातर सोते हैं एक पाँव को फोल्ड करते हुए, इस तरह से कभी भी आप उठते हो रिलैक्सेशन होकर के तो आपको चर्क नहीं लगे। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स प्राणायाम सेक्शन। अच्छे से हो गया सबका? चलो, सिटी ने वज्रासना। फर्स्ट वी विल डू भस्त्रिका प्राणायाम। इक्वल प्रोपोर्शन में श्वास को लेना है और इक्वली छोड़ना है। तो अपने हाथों की फिस्ट बना लें। ऊपर जाते समय हाथों की फिस्ट को खोलना है और नीचे आते समय फोल्ड करते हुए फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है। स्टार्ट करेंगे। इनहेल 20 राउंड। इसी पोजीशन को सामने की तरफ स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी एंड देन एक्सहेल। Breathe in and breathe out. 3 4 Open your arms. Feel the vital capacity of your lungs are increased like that. Open lungs are expand and exhale completely toxin free. Inhale and exhale. Inhale and exhale.
When you open your chest, inhale, and when you contract your chest, exhale. Release and relax. विंटर के मौसम में ज्यादा कोल्ड एंड कफ होता है, तो हम एक क्रिया के साथ, अभी हमने देखा विदाउट क्रिया 20 स्ट्रोक्स हम विदाउट क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को नी पर लगा ले फर्मली। इनहेल, आपके चेस्ट को, आपके एब्डोमिनल को, सबको एक्सपांड करना है ताकि आपकी लंग्स पूरी तरह से खुल जाए और पूरी तरह से श्वास अंदर जाए, ब्रीद इन हो। फिर से फुली एक्सहेल करना है, कंप्लीटली टॉक्सिन्स फ्री बनाने के लिए। Now start 20 round. Take a deep breathe in and exhale completely. Now start fast rotation. Now release. जिनको हाइपर टेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो ऐसा नहीं करें। उनको स्लो फेस में ही करना है, या जो प्रेग्नेंट है उनको भी इस तरह से फास्ट नहीं करना। उनको सिंपल स्लो एक्टिविटी के साथ योगिक ब्रीदिंग लाइक करना है। इनहेल एंड एक्सहेल इन इक्वल प्रपोर्शन लाइक दैट। स्लोली ब्रीद इन एंड स्लोली ब्रीद आउट। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनको इस तरह से स्लो करना। ना कप भस्त्रिका के बाद हम कपालभाति की तरफ बढ़ते हैं। तो हम 20-20-20 के 3 स्ट्रोक्स करेंगे। 20 स्ट्रोक्स के साथ ब्रीद इन करना है और फिर 20 स्ट्रोक्स लगाने हैं। फुली एक्सेल, कंप्लीटली एक्सेल। इनहेल होगा वो पैसिव होगा, यानी ऑटोमेटिक श्वास अंदर आ जाएगी, हमें उसके ऊपर अवेयर नहीं होना है, हमें सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देना। तो इनहेल, टेक डीप ब्रीद इन, स्माइलिंग फेस रखते हुए ही कपालभाति करना है। एंड स्टार्ट स्ट्रोक एक्सेलिंग। 1 second, 1 stroke. फिर से इनहेल करेंगे। इनहेल, टेक डीप ब्रीद इन एंड स्टार्ट एक्सेलिंग। नाउ थर्ड राउंड की तरफ बढ़ेंगे। इनहेल, टेक डीप ब्रीद इन एंड स्टार्ट फोर्थफुल एक्सहेलेशन, 20 स्ट्रोक। Breathe and relax. टेक डीप ब्रीद इन। ये जब शुरुआत में हम करते हैं तो हमारी थोड़ा बैक में दर्द होता है, कपालभाति के स्ट्रोक जब हम देते हैं। और फोर्सफुल एक्सहेलेशन, एक्टिवली एक्सहेल करते हैं, पैसिवली इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स और आपकी बैक मसल, इस दोनों में थोड़ा कभी कभी शुरुआत के दिनों में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो हम उसके प्रति केयरफुल रहें कि हाँ हमें होगा दर्द, और हम इस प्रैक्टिस को छोड़े ना। कपालभाति हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे न्यूरो सिस्टम दोनों के टॉक्सिन्स को फ्री करती है, दोनों को एक्टिव करती है, स्टिमुलेट करती है। तो कपाल भाती नाम क्या है, आपके कपाल पे चमक लाने वाला। तो कपाल भाती से हमारा न्यूरो सिस्टम एकदम स्टिमुलेट होता है, स्वस्थ होता है, तो उससे चमक आती है हमारे चेहरे पे। तो इसके आप 200 राउंड फास्ट स्ट्रोक से कर सकते हो, स्लोली आप
60 राउंड, इस तरह से। न्यू बिगनर्स हैं तो आप 20-20 के स्ट्रोक के साथ करें तो आपको बेनिफिट होगा। नौ मंडूकासन के लिए हम तैयार होंगे। दोनों हाथों की फिस्ट बनाएंगे, पूरा एक्सेल करना है और मंडूकासन लगा के सामने की तरफ देखना। लिटिल फिंगर टचिंग टू योर navel region and make this inhale, expand your chest, exhale completely and hold for 20 seconds. Look front. 1, self counting, 20 count. इनहेल, कम अप, श्वास लेते ऊपर आएंगे। जब भी आप आगे की तरफ झुके तो आपके हिप्स आपके हिल से टच होने चाहिए, उठने नहीं चाहिए, ठीक है? उस चीज का हमेशा ध्यान रखना। नो, अभी हम हेड को भी ड्रॉप कर देंगे। ये हमने पहले किया था हेड को ड्रॉप करने वाला। अभी हम एक्सेल करके उड़ियान बंद लगाएंगे, ठीक है? इनहेल, एक्सेल, गो डाउन कंप्लीटली। जिसको नहीं मालूम एक बार देख लें। केचुआ नोस्ट्रल, श्वास जैसे ही खाली हो नाक को पकड़ के ऊपर आ जाना है, एब्डोमिनल लॉक लगा देना है, चिन लॉक लगाना है और श्वास को छोड़ देना। फिर डायफ्राम को थोड़ा और ऊपर करना है ताकि आपका त्रिबंध लग जाए। मूल बंद, उड्डयन बंद जो आपका एब्डोमिनल लॉक एंड चिन लॉक जो जालंधर बंद है। तो इस तरह से तीनों बंद के साथ जब हम करते हैं इस प्राणायाम को तो ये बाही कुंभक कहलाता है, महावेद मुद्रा। फिर से एक बार करेंगे, अभी मैं बताऊंगी नहीं, सब अपना सेल्फ करेंगे और होल्ड करके सेल्फ काउंटिंग करेंगे कितनी देर आप होल्ड कर सकते हो। इनहेल, गो डाउन, एक्सेल, सांस लेते समय गर्दन को नेक लॉक खोलते हुए धीरे से ब्रीदिंग करें। ये आपके कुंडलिनी को भी जागृत करने में ये मुद्रा बहुत काम आती है, महावेद मुद्रा। जो हमने त्रिबंध लगाया, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, जो मूलाधार चक्र है वहां से आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये एक इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। और प्लस आपकी फैट लॉस होता है, अगर एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में तो वो लॉस होगा। तो बाह्य कुंभक से दोनों फायदे, ठीक है? और आपको कैपेसिटी बढ़ती है। और इतनी देर जब आपने श्वास रोका तो क्या हुआ, हार्ट बंद हो गया उस उतनी देर के लिए, तो आपके आर्टरीज के न्यू पाथवे भी इससे बनते हैं। बहुत ज्यादा इसका पूरी बॉडी में फायदा है, क्योंकि आप श्वास रोक के करते हो ना, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, लंबी ब्रीदिंग लेने की कैपेसिटी डेवलप होती है ना। ये हमने एक्सेल करके किया। अभी हम अंतर कुंभक लगाएंगे। क्रॉस लेग पोजीशन में भी हम अंतर कुंभक लगा सकते हो और क्रॉस लेग पोजीशन में भी आप महावेद मुद्रा कर सकते हो, लेकिन वज्रासन में इजीली होती है हमारे से। नाउ इनहेल एंड होल्ड, चिन लॉक लगा देने का है, श्वास को अंदर भर के होल्ड करने का है, सेल्फ काउंटिंग करना है कितनी देर आप सेल्फ काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ इनहेल एंड होल्ड। सांस लेते समय नेक को सीधा करते हुए फिर से ब्रीद आउट करेंगे और फिर श्वास लेंगे। जो हमारे श्वास भरी हुई उसको एक्सेल करना है। और आपकी कैपेसिटी कितना हुआ वो हम बाद में, अच्छे से हो गया ना दोनों का, ठीक है? नाउ अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। अगर कोल्ड है तो बाही कुंभक लगाए, वो प्रेग्नेंट लेडीज को या फिर आपके हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उनको ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है। और ये
अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जब आप पूरी तरह से कोल्ड एंड कफ फ्री हो, मतलब कोल्ड एंड कफ नहीं हो, तो अनुलोम विलोम की तरफ बढ़े, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। उसके पहले अगर कोल्ड एंड कफ है तो सूर्य अनुलोम विलोम 20 राउंड करेंगे। तो हम पहले सूर्य अनुलोम विलोम करेंगे। सूर्य अनुलोम विलोम से भी आपका फैट लॉस होता है, ठीक है। तो ये भी फैट लॉस को में मदद करता है और साथ में आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है। तो अपने राइट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बना के अपने नी पे रखेंगे। राइट हैंड से ज्ञान मुद्रा, सॉरी, प्रणव मुद्रा। एंड देन क्लोज योर लेफ्ट nostril थ्रू योर ring finger and inhale right nostril up to 4. Exhale left side up to 6. फिर से inhale through your right nostril, exhale towards your left nostril। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए मैं राइट नोस्ट्रिल को ज्यादा एक्टिवेट करने का कर रही हूँ। अगर जिनका एक्टिवेट है, दोनों नोस्ट्रिल इजीली हैं, तो वो लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम भी कर सकते। इनहेल थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, एक्सहेल टुवर्ड्स लेफ्ट। आप अगर बिगनर्स नहीं है तो क्या आप 12 तक भी छोड़ सकते हैं, 6 एंड 12 के रेशो में भी आप इसको कर सकते हैं। इनहेल राइट, exhale left up to 12। Inhale right, exhale left up to 12। अभी हम अनुलोम विलोम की तरफ बढ़ेंगे। लेफ्ट से लेंगे श्वास। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल अप टू 6। Exhale towards right, alternate nostril breathing। Inhale through your right nostril up to 6। Exhale towards left up to 12। Inhale left nostril up to 6। Exhale right nostril up to 12। आप 12 काउंट सेल्फ करें, तब तक आपको धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ब्रीथ स्लोली। Inhale right nostril, slowly breathe in। Exhale left nostril, slowly breathe out। Inhale left up to 6। Exhale right up to 12। Inhale right up to 6। Exhale left up to 12। Inhale left up to 6। Exhale right up to 12। Inhale right up to 6। Exhale left up to 12। इतना स्लोली करे कि आपकी श्वासों की आवाज है आपको भी ना सुनाई दे, इतना हमें स्लोली करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद 3 राउंड भ्रामरी के करेंगे षडमुखी मुद्रा बनाते हुए। फिर हम 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि भ्रामरी से मेडिटेशन में जाना और इजी हो जाता है, क्योंकि हम अपने अंदर का अनहद नाद सुनने। भ्रामरी की प्रैक्टिस जब आपकी हायर हो जाएगी, तो आपके अंदर जो अनहद नाद
कंटिन्यूअसली गूंज रहा है उसको आप सुन पाओगे। तो फर्स्ट फिंगर हम यहाँ लगाते हैं, सेकंड फिंगर नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, थर्ड फिंगर से टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल एंड फोर्थ फिंगर अपर लिप्स। हम से हमारे ईयर को बंद करते हैं, तो क्या हम अपने अंदर की तरफ उतरना शुरू करते हैं। तो फाइव सेंसेस को हमने लॉक कर दिया अपने फिंगर से, टिप ऑफ द फिंगर से। एंड देन कंटिन्यूअसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट होगा हमिंग बी साउंड की तरह। नॉस्ट्रिल से ही सांस निकलेगी इस तरह से। इनहेल, जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका टंग पैलेट पे होना चाहिए। इनहेल, drop your palm, interlock your palm into your beautiful lap and feel the silence। जो अनहद नाद अभी हमने सुना उसे अपने अंदर ब्रीथ की साउंड में सुनने की कोशिश करो। अपने ब्रीथ पे फोकस करो, ब्रीथ की साउंड को सुनो। और जब आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसके साक्षी बन जाओ। जैसी भी सांस चल रही है उसे देखो दृष्टा भाव से, कहाँ चल रही है। जब आप सांस लेते हो कहाँ से लेते हो, कहाँ छोड़ते हो। अपनी बंद आंखों से, अंतर चक्षु से हमें अंदर की क्रिया को देखना, हमारे अंदर जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहे, साक्षी बन जाए। बाहर से पूरी तरह कटते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की यात्रा। अपने आप जहां फोकस होता है आपका एब्डोमिनल पे, सोलर प्लेक्सस पे, या आपके अनाहत यानी हार्ट एरिया में, या आपके थर्ड आई सेंटर पे, जहां भी आप फोकस कर सकते हो वहां देखने की कोशिश करो स्वतः, जहां हो जाए। या फिर अपनी ब्रीथ के साथ बने रहो। ब्रीथ को ऊपर जाता हुआ नीचे आता हुआ देखो। कोई भी विचार आए फिर से अपनी श्वासों पे लौट के आ जाए। विचार शून्य बनना है हमें, लेकिन हमें साक्षी भाव में रहना है। आ रहा है विचार, आने दे। फिर से अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हुए, जागरूकता को बढ़ाते हुए अपनी श्वासों पे आ जाए। जब हम श्वास के साथ धारणा कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो हमारे विचार धीरे धीरे शून्य होने लगते हैं। और वो शून्यता ही हमें ट्रांस में ले जाती है। विचार शून्य पोजीशन ही ध्यान की अवस्था है।
5 मिनट का ध्यान भी हमारे जीवन में वंडर कर सकता है। हमें पूरी तरह से काम डाउन करता है, पूरी तरह से रिलैक्स करता है, और हमारे माइंड को सबसे ज्यादा रिलैक्स करता है तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, अपने फंक्शन और अच्छे से करने लगती, पीनियल ग्लैंड। और जो हमारी वेगस नर्व्स है, इट्स वर्क वंडर। हमारा हिप्पोकैम्पस बढ़ जाता है, जो हमारी मेमोरी को इनहेंस करता है। तो ध्यान के बहुत बहुत एनॉर्मस फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। जब भी जीवन में समय मिले, सुबह, दिन में, शाम को, 5 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 10 मिनट तक ले जाओ। धीरे धीरे आपको आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा, आपको खुद को आपका इनर सेल्फ गाइड करने लगेगा कि हमें जीवन में क्या करना है। आपकी स्वयं की चेतना आपको गाइड करेगी, आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे फिर से अपने बॉडी को महसूस करें, अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करें, अपने शरीर को, अपने आंखों को महसूस करें। अपने आपका, अपने शरीर का और इस अपनी चेतना का धन्यवाद करेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे इतने सुंदर ध्यान के लिए और इतने सुंदर एक्सरसाइज के लिए, हमारी मसल्स को टर्न अप करने के लिए। अपने पूरे शरीर के एक एक सेल का धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता गुरु मेंटर का धन्यवाद करेंगे, इस पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे आज की इतनी सुंदर सुबह के लिए। और नमस्कार मुद्रा बनाते हुए एक ओंकार के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your palm, rub your eyes, and slowly open your eyes into your palm. Massage your whole body. जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, उसे एक बार आंखें बंद करके विजुलाइज कर दे, उसे होता हुआ देखें, मैनिफेस्ट होता हुआ देखें। पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरे पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे। Thank you. थैंक